Hello students and the viewers. Welcome you all to my channel KCC English Education. My name is G.L. Kabiraj. Today our topic is pronouns and their various uses. Pronouns and their various uses. As we know, we have in English grammar 8 parts of speech we have, and all the parts have their different uses. Okay, nouns they have different uses, pronouns they have different uses. So today our topic is a pronoun. How can we use a pronoun in a different ways? And especially it is for the beginners and those who are, even those who speak English. Many a times it is found that problem comes in using your pronouns when you are trying to use the pronouns in an appropriate way. See the process first. First of all, you have to understand what is pronoun. A pronoun is a word which replaces the noun. Pronoun एक शब्द है जो कि noun के बदले में यूज किया जाता है. That is called pronoun. Now this, as it is written here, subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun, and also we use as adjectives. Now let us see what are these. I see, follow me. The subjective pronouns. First of all, let us see what is subjective pronoun. जो I, you, we, he, she, it, they, and this is one is noun, that is Rohit. Okay, now I, you, we, he, she, it, they, these are what? Personal pronouns. In place of my name, I am using I. In place of your name, you are using you. I am using you. Okay. In place of our name, we are using we. Any male member, singular, we use he. She, female, we use she. It, non-living, we use it. Or small creatures also, we use it. They, living, non-living both. More than two or more, we use they. Okay, so all these are pronouns. And only Rohit is here, it is written noun. How, and I'll let you know how these are used. कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व मी. नाउ दिस इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्ट के प्लेस लेता है, ये सब्जेक्ट के प्लेस में ये यूज होता है. नाउ सी आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ आई? मी. आई का हिंदी मीनिंग मैं. मी का हिंदी मीनिंग मुझे. ओके, मुझे. आई मी. माइन मेरी या मेरा. मेरी पॉजेसिव प्रोनाउन है. When you are the owner of a particular thing or property, then you can use mine. Mary. And here, what is my? My is a possessive adjective. My के बाद हम एक noun का इस्तेमाल करना पड़ता है. My plus a noun, जिसके सामने एक noun को लगाओ. My book, my pen, my bike, my mother, my father, any noun will come. All these, in front of all these, इसके बाद, not in front, after this, ये सबके बाद noun का इस्तेमाल होगा. Okay, that is called possessive adjective. Now come to this once again. ये subjective है. कैसे subjective है? इससे sentence start होता है. I, ये जो है verb, देखो carefully. If you watch this video repeatedly, that will be far better because so many things are there to write it down. तो मैं लिखना मुश्किल होता है. and another thing is it takes more time also. इसे ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पे हमारी जो गैप छोड़ा है ये क्या है? ये वर्ब है. आई नो यू. आई मैं. नो यू. यू मतलब आपको. आई नो यू, मैं आपको जानता हूं. तो आई नो टू हुम. टू हुम क्वेश्चन पुट करो, फिर फाइनाइट वर्ब के सामने ऑब्जेक्ट मिल जाता है. व्हाट एंड टू हुम. आई नो टू हुम, किसको जानते हो? आई नो यू, तो आपको. ये यू मतलब आपको, और यहां पे यू मतलब आप. ये आपको नहीं है. व्हेन यू आर यूजिंग एट सब्जेक्ट प्लेस, तो आपको नहीं है, ये है आप. यू नो मी. देखो यहां पे आई नो यू, मैं आपको जानता हूं. यू नो मी, आप मुझे जानते हो. मुझे, मी मतलब मुझको या मुझे.
हिंदी का हेल्प, थोड़ा सा आपको मदर टंग का हेल्प चाहिए टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, वंस यू नो इट देयर आफ्टर नो नेसेसरी. नाउ मी, और ये जो माइन है, मेरी है, ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि आपका पोजीशन, कोई भी वस्तु का पोजीशन दिखाता है, एंड दैट शोज योर ओनरशिप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट का ओनरशिप दिखाता है ये सारे. नाउ लेट अस सी. वी मतलब मैं, हम. ओके, वी नो यू, हम आपको जानते हैं. यार यू मतलब आपको. वी नो यू. नाउ ये जो माइन, योर्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्लेस लेता है. देखो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये, और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ऑब्जेक्ट कहां पे आता है? थर्ड प्लेस में. ये देखो यहाँ पे एवरी हियर ऑल दिस फाइनाइट वर्ब इज देयर. आपको एक फाइनाइट वर्ब रखना पड़ेगा यहाँ पे, तब सेंस क्लियर होगा. एंड वी मतलब हम. वी नो यू, आपको. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का प्लेस में भी यू है, ऑब्जेक्ट का प्लेस में भी यू है. तो दोनों यू में अंतर क्या है? यू मतलब आप, और वी नो यू, यू का मतलब क्या है? आपको. यहाँ पे को लग गया और यहाँ पे को नहीं लगा, ओनली यू मतलब आप. ओके, यू कम टू द क्लास डेली, आप रोज क्लास अटेंड करो. ओके, यू. एंड ये यू मतलब आपको. आई नो यू, मैं आपको जानता हूं. इन दिस वे, पहले तो इसका मीनिंग समझो. ही मेल मेंबर, सिंगुलर ही, वह. ही नोज मी, ही नोज मी, मुझे, मुझको. ही नोज मी. और शी फीमेल, सिंगुलर, शी नोज यू, शी नोज अस, शी नोज हिम. मतलब बीच में एक फाइनाइट वर्ब लगा के ये सारे यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड? अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करो, ही शीट के साथ एसीएस फॉर्म यूज करो, एंड देयर आफ्टर दिस विल कम, नॉट दिस. ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा. रिमेंबर, गलती से भी ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस. थर्ड प्लेस में यही आता है क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ठीक है, आई का प्रोनाउन है मी, तो आई नो मी, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता इसे. आई नो यू, आई नो यू, आप, मैं आपको जानता हूं. यू नो मी, आप मुझे जानते हो. ही नोज मी, ही नोज यू, ही नोज अस, ही नोज हिम, ही नोज हर, ही नोज इट. एनी, ये जो है देख रहे हो, ये थर्ड प्लेस लेता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का प्लेस. एंड इट इज कॉल्ड विच ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सारे प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लिया. ओके, और ये क्या है? ये कब यूज होता है? माइन, योर्स, आवर्स, हीज, हर्स, इट्स. कहीं पे भी अपोस्ट्रोफी नहीं है. देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगा क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी लगता ही नहीं. सेंस क्या मिलता है? दिस, कोई भी आप किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो तो दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, मेरी है. किसका है? आपका है, तो माइन लिखोगे. ओके, दिस बुक इज योर्स, ये आप ही का है. सिमिलरली आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स, हमारे है. अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है यहाँ पे, आवर्स. फिर हिज, हर्स, सभी पोजीशन दिखाता है. दैट इज व्हाई इट्स नेम इज possessive pronoun. Okay, possessive pronoun. And when you are using possessive adjective, remember, then we are using a noun immediately after that. Only my is useless. केवल my से आप sentence बनाओगे. This is my. This is my what? This is my book. This is my pen. Okay, this is my bike. Isn't it? तो my के बाद सभी में आपको noun लगाना पड़ेगा. इस पे योर फादर, योर मदर, योर बुक, योर, कुछ भी, कोई भी नाउन एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न, हमारी जरूरत के हिसाब से हमें नाउन लगाना पड़ता है. तो ये भी कंफ्यूजन नहीं है. ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है. आया कहाँ से? आई से ही आया है माई, यू से आया है योर, ही से, वी से आवर, ही से हिज. ये सारे इससे इंटर रिलेटेड है, लेकिन प्लेसमेंट्स अलग है, इसका यूजेस भी अलग है. इसका सेंस पूरी बदल जाता है. हमें ठीक ठीक से समझना चाहिए, नहीं तो कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स दे फेस ट्रबल, प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं इन राइट वे.
तो हमें पहले हिंदी में समझना पड़ेगा इसका हिंदी मीनिंग. और दैट आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियोज, दोज वर द बिगिनर्स वाचिंग माय वीडियोज. So many are they are watching my videos regularly. You should watch twice, thrice, 3 to 4 times. So the concept will be clear. Okay, you are not getting much time to write, to okay learn your lesson, but you can listen at least. Listen से आपको बहुत फायदा हो जाएगा, तो इससे आपको कभी गलती नहीं करोगे. Now question comes, they them, ये सारे तो समझ में आ गया इस तरीके से यूज होता है. नाउ पर्सन, अगर पर्सन होता है, मान लो ये यहाँ पे सारे तो प्रोनाउन है, ये रोहित एक नेम है, तो रोहित मैंने यहाँ पे क्या कहा, फाइनाइट वर्ब. रोहित नोज मी, रोहित नोज मी. अब रोहित नोज राहुल, रोहित नोज नेहा, नेहा नाम के कोई लड़की है तो रोहित नोज नेहा. यहाँ पे अगर मैं दूसरे नाम लिखता हूं कि रोहित नोज नेहा, रोहित नेहा को जानते, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, नाउन का रिपीटेशन नहीं है, अनदर नाउन. रोहित नेहा को जानता है, रोहित नोज नेहा. एंड इसको पॉजिटिव क्या होगा, ये जो है किसका है, ये रोहित. पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज करते हो, हुज बाइक इज दिस, रोहित. दिस बाइक बिलोंग्स टू रोहित, दिस इज रोहित्स बाइक, रोहित का है, ही इज द ओनर ऑफ दैट बाइक. ओके, अगर आप एडजेक्टिव के यूज करेंगे, रोहित्स फादर, रोहित्स मदर, रोहित ब्रदर, तो वो एक नाउन आ जाएगा इसके सामने. जब भी ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हो तो उसके सामने, हर एक एडजेक्टिव के सामने नाउन लगता है. सो दिस थिंग शुड बी क्लियर. ओके, मेनी टाइम्स आई फाइंड द स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग ट्रबल. सो इफ यू are facing such trouble, repeatedly watch these videos and try to make sentences of your own. अगर पॉसिबल हो तो देखोगे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर. आई थिंक यू गॉट इट, ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू.